Already? Yes. I am Professor Dr. Vivek Gupta in Apollo Hospital, New Delhi. Today is 30th of June, the last day of June. It is about 5:30 p.m., 5:35 p.m. I am going to demonstrate to you, show me my face. I am going to demonstrate the live coronary angiography. Lot of people have lot of fear against angiography. So I am here with my friends, Madam Lalita, who is the nursing staff in Apollo Hospital, Delhi, Jasola. The person who is doing the recording is Mr. Amit Srivastav and Mr. Basant, who is a very senior technologist of Apollo Hospital, working for last almost 10 years. So this is the cath lab area. You can see this looks like an operation theatre, but this is actually not an operation theatre. Move slowly. So I am Professor Dr. Vivek Gupta once again telling you that angiography is a non-surgical technique. We don't use the blade. If you see here, this is done from the groin, and we have put a sheath which is going into the artery, and this artery is connected internally into the heart. Patient is fully conscious. Namaste. क्या नाम है आपका? राजीव जैन. He's a big man. Big not by volume, but otherwise his status. So let me talk a little lightly. So first of all, we put a sheath in the femoral artery, and then we connect here so that we can see the pressure, blood pressure. We always check the pressure before that. It's otherwise simple procedure. And then we give about 2.5 for the heparin, which we already given. Nursing staff is helping him to give the catheter. These are the catheters. Don't go by the blood. Actually, there is no cut. We have not used a blade. So I say. So this is actually a catheter which goes inside the coronary artery with the help of this sheath. Normally it takes about 3 to 4 minutes, but when I am teaching it and showing it live, I show it live? Yeah. Huh? It's coming. Okay. When I am showing live, I have to be a little slow. So this is Judkin catheter, which is a 5 French catheter in the diameter, and you see we are inserting into this with the help of wire. Show the monitor now. Now this catheter is going inside with the help of radiological image. With the help of radiological image, we are now going inside the aorta and then into the coronary artery of the heart. And this is a very specialized system, and the patient is fully does not have any pain. The catheter is inside the coronary artery, and I have checked that this is inside the coronary artery. So these are the actual movement. These are the fluoroscopy machine which take the views from various angles. हमको एक 2-dimensional इमेज को 3-dimensional बनाने के लिए अलग अलग तरीके से फोटो लेनी पड़ती है. अब मैं इसमें डाई इंजेक्ट करूंगा. डाई पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा. आप दिखाइए, डाई देखिए, and you will see the coronary arteries here. So these are the coronary arteries. जो नसें हैं हार्ट की धमनियां दिल को सप्लाई करती हैं, वो हम डायरेक्टली इंजेक्ट करके देख रहे हैं. एक और लेना. सो विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस, कैमरा का मूवमेंट से अलग अलग तरीके की फोटो आती है. Mr. Basant, who is technician, is moving the camera, and we are seeing directly the coronary arteries. You see the movement of this camera again. अलग अलग मूवमेंट किया. एक चित्र को अलग अलग तरीके से फोटो लेना है, जिससे कि हमें पता लगे कि ब्लॉकेज है कि नहीं है. एक आरे भी ले लो, या चलो ले लो. एक एले पॉडर ले लो. तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं डाई इंजेक्ट कर रहा हूं. इसे डाई इंजेक्ट कर रहे हैं. डाई इंजेक्ट कर रहे हैं और वहां पे चित्र देख रहे हैं जो कि कैमरे से हमको दिखाई दे रहा है हार्ट के अंदर का. एले पॉडर
अब फिर कैमरे का मूवमेंट चेंज हुआ, तो जैसे फोटोग्राफर अलग अलग तरीके से चित्र लेता है, जैसे बॉलीवुड की हीरोइन का या हॉलीवुड का या किसी फैशन का अलग अलग फोटो ली जाती है, इसी तरह हम लोग हार्ट की नसों का अलग अलग एंगल से व्यू लेके देखते हैं कि एक्चुअली में ब्लॉकेज है कि नहीं है, और है तो कितना है। इसको अंदर कर रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ। जिसमें सर्कमफ्लेक्स दिख रही है, तो ये एक तरह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के शॉर्ट देखे हमने। अब इसको दिखाते हैं आपको फिर से। इसमें एक नस है लेफ्ट की, अभी बाद में दिखाएंगे, उसमें ब्लॉकेज है, वो डिस्कस करेंगे एक बार और। डबल जूम करके डबल जूम करके ये काला काला जा रहा है, वो डाई है। जब डाई जाती है, डाई जाती है तो नसों के अंदर की डाई जो है नस के बारे में बताती है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। हार्ट की जो नसें धमनी कहते हैं, जिसको आर्टरी कहते हैं, वो हार्ट को सप्लाई करती है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब नस पूरी तरह 100% बंद हो जाती है। अब ये सब चेक करने के लिए कि कितनी परसेंट बंद हुई है, राइट। अब हम दूसरा कैथेटर लेंगे। अभी लेफ्ट की आर्टरीज मैंने देख ली, अब राइट वाली देखेंगे। ये कैथेटर उसी तरह का है। Nurse is putting the wire inside. This is very technical thing, but since we do regularly, we are very much experienced. Nurses are also very experienced in Apollo Hospital. सेम वे अभी एक कैथेटर डाला था, अब दूसरा कैथेटर डाल रहे हैं। अभी दूसरा कैथेटर जा रहा है जो राइट वाली नस को देखेगा। हार्ट के अंदर दो नसें होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो लेफ्ट वाली मैं देख चुका हूं, और राइट वाली देखने के लिए मैंने दूसरा कैथेटर डाला। अब इस कैथेटर घुमाने से उसको राइट वाली नस के उसमें जहां पे ओरिजिन है वहां पे इसको हुक करेंगे। ये राइट वाली नस को हमने हुक करा और राइट के नस के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया डाई। और फिर कैमरा का मूवमेंट किया हमने दूसरा तरह से। अब दूसरे व्यू में देखा हमने, इसी को इंजेक्ट करा। ये राइट की नस है। अब इसी कैथेटर से हम किडनी की नस भी देखेंगे। तो किडनी को सप्लाई करती है, इसी कैथेटर से हम देख लेंगे। कई बार किडनी की नसों में ब्लॉक होता है और हमें पता नहीं रहता। तो बहस क्यों होती है? बायलैटरल। ओके, तो ये हमने एंजियोग्राफी खत्म हो गई। और एंजियोग्राफी में हमने जो बातें बताई है वो अभी आपको डिस्कस करेंगे। मेरा ये प्रयास है आपको दिखाने के लिए कि एंजियोग्राफी एक बहुत ही सहज मतलब आसान सिंपल टेक्निक है, जो कि ईको जैसा ही होता है। ईको से हार्ट की पंपिंग पता लगती है और एंजियोग्राफी से हार्ट के अंदर की सारी नसें पता लगती हैं कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। मैंने फिर से चेक कर लिया। ये टीम हमारी है, अपोलो हॉस्पिटल की कैथ लैब है। इसमें अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हुए आपने देखा, मुझे आपको पढ़ाते हुए सिखाते हुए भी केवल 7 मिनट लगे एंजियोग्राफी करने में। मैं घड़ी देख के बता रहा हूं। तो इस हिसाब से एंजियोग्राफी इज ए सिंपल टेक्निक। और मैं अब साथ में अपने अमित श्रीवास्तव जो दोस्त है हमारे, मिस्टर बसंत जो कि बहुत सीनियर मोस्ट टेक्नीशियन है, और मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, यहाँ से विदा लेने से पहले
पेशेंट नमस्ते, ठीक है आप जैन साहब? फर्स्ट क्लास। हाँ हो गई। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चित्र में पाया मैंने। ये आप देखिए, एंजियोग्राफी समाप्त हो गई है। ये किडनी की नस है हाँ जी। लेफ्ट वाली, इसमें करीब 70% ब्लॉक है। राइट वाली दिखाओ। राइट वाली नस में करीब 80% ब्लॉक है ओरिजिन में। अब हम हार्ट की नसें दिखाते हैं। ये पहला व्यू था, इस चित्र में देखेंगे शुरू में 70% ब्लॉक है यहाँ पे करीब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, लेफ्ट की एक ब्रांच है। नीचे करीब यहाँ पे आप देखेंगे करीब 60 से 70 या 80% ब्लॉक है यहाँ भी सर्कमफ्लेक्स में। ये सर्कमफ्लेक्स इज ए ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम उसको आगे बढ़ेंगे राइट लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी में। नेक्स्ट व्यू, इसमें करीब 40 से 50% केवल ब्लॉक है, पतली हो गई है नस, तो इसमें हमको स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ हमको रेस्ट, राइट वाली दिखा दो। अब राइट की नस दिखाते हैं आपको। राइट की नस बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ी बीच में करीब पतली है, थोड़ी करीब 15 से 20-40%। एक और व्यू है इसके बाद। तो राइट की नस बहुत बड़ी है और पूरी तरीके से सप्लाई कर रही है और करीब 15-20% ब्लॉक है यहाँ पे, बाकी पूरी नस नॉर्मल है, इसकी ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से हमने इस एंजियोग्राफी से क्या पाया, इनको छाती में दर्द होता है, इस पेशेंट को पेन होता है चेस्ट में, इनका एंजाइना हुआ है, ईसीजी में खराबी आई है। मैं अपना चेहरा दिखा दूं जिससे कि आप लोग जो भूले ना। तो एंजियोग्राफी इज ए सिंपल टेस्ट। नंबर 1, इट इज वेरी मैंडेटरी टेस्ट इन पेशेंट जिनको एंजाइना हो रहा है। अगर हम इसकी एंजियोग्राफी नहीं करते तो इसका ब्लॉकेज हमको पता नहीं लगता और कभी कभी हार्ट अटैक में बदल जाता। अब इनको दिल का दौरा नहीं पड़ा है। अब ये जो 2 ब्लॉकेज हैं सर्कमफ्लेक्स में जो आपको दिखाया मैंने, इसको हम लोग एंजियोप्लास्टी स्टेंट करके पहले पेशेंट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके स्टेंटिंग की प्रक्रिया करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टर क्लीन दिस। तो ये पेशेंट की एंजियोग्राफी समाप्त, केवल 7 मिनट लगे हैं। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता अलॉन्ग विद मिस्टर बसंत टेकिंग लीव फ्रॉम एंजियोग्राफी। अगर एंजियोप्लास्टी आज करते हैं तो मैं आपको फेसबुक लाइव पे दिखाऊंगा और कल करेंगे तो भी आपको फेसबुक लाइव दिखाऊंगा। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल 5:35 PM और 30 जून लास्ट डे। 4 बजे हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री का भाषण सुना, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बताया है 80 करोड़ जनता को क्या दिया है, 5 केजी राशन चावल या गेहूं और 1 किलो चना। 1 किलो चना, 5 किलो राशन फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ जनता को नवंबर तक दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। मैं आपको इस यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री काफी काम कर रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे पास फोन आया था हरदीप सिंह पुरी साहब का, हमारा व्यू लाने के लिए ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं उसके बारे में बाद में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। एंजियोग्राफी इज सेफ प्रोसीजर। इफ यू हैव रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी ने बताया है या आपके रिश्तेदार को बताया है तो प्लीज डोंट डिले, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल सेफ है, इट इज सेफर देन वॉकिंग ऑन द रोड। 2 गज की दूरी बना के रखें कोरोना से। 2 गज की दूरी हम भी नहीं बनाए हुए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें, अगर हम मास्क पहने हुए हैं तो 2 गज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 2 गज इज इंपॉर्टेंट, बट इफ यू कंप्लीटली मास्क देन यू कैन टॉक बट यू डोंट किस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फेसबुक लाइव पे आपके विदा लेते हुए डॉक्टर विवेक गुप्ता अलॉन्ग विद दिस 2 गज की दूरी 2 गज प्लस मास्क बना के रखें और प्लस मास्क हमेशा पहने। कोरोना से बचना है और लड़ना है। अपने आप को सेफ रखना है और दूसरों को भी सेफ रखना है, दूसरों के फैमिली को सेफ रखना है। हमारे बसंत साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, इन्होंने अच्छी राय दी है और प्रधानमंत्री के अभी उनकी भाषण को बता रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली।